Till then you can revise beta is CMI and also EM waves. है ना सचिन? So hi everyone, it is the last lecture of the capacitance and the topic is dielectrics and the polarization. So what are dielectrics? As we discussed in the earlier lectures, the dielectrics are the insulating materials which do not flow the charge, which do not transmit the charge. Okay, but transmit charge by induction. They do not transmit the charge by conduction. They do not conduct. They do not flow the charge through them, but they can transmit by induction, or they can exert electrostatic force in between the charges. So what are the different examples of the dielectrics? Air, paper, mica. Every material has its dielectric constant. एक वैल्यू होती है हर एक डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है? What is the value for water? If we talk about the value of dielectric constant for water, it is 81. ठीक है? If we talk about air, its value is 1. So each material has its own dielectric constant. कि वो कितना charge को transmit करता है by induction. So those are dielectrics. So they have a number by which we can identify कि वो कितना ज़्यादा dielectric है या नहीं है. That constant is known as dielectric constant. So we can define dielectric constant in 4 terms. ठीक है? It is represented by the letter K. Dielectric constant को हम किस letter से represent करते हैं? K से. So first one, K is equals to F naught by Fm. Remember, when we studied about the electrostatic forces, there also we discussed the dielectric constant. So it is a ratio of electrostatic force between the two charges in air or vacuum to the electrostatic force between the two charges in any medium. That is K. Okay, if we rearrange it, it's Fm is equals to F naught upon K. This is a question which you have now. कि if K is inserted, इसका मतलब अगर पहले दो चार्जेस वैक्यूम में थे, उनके बीच में कुछ फोर्स थी. If those charges are now kept in a medium having the dielectric constant K, तो फोर्स जो थी वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? So it will be reduced. अगर K डिवाइड में है तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी. K अगर मल्टीप्लाई में होता है किसी क्वांटिटी के साथ, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. Understood? So this force will be reduced by K. अगर कोई ऐसा मटेरियल है which has a dielectric constant 4, then force between the two charges is reduced by the factor 4. K की वैल्यू जब आप यहाँ 4 पुट करोगे, तो अब आपने कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 4 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है. आपने उस मीडियम में चार्जेस को पुट कर दिया, पहले वैक्यूम में थे, तो फोर्स क्या हो जाएगी मीडियम में डालने के बाद? इट इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर K. जिस भी डाइलेक्ट्रिक में आप चार्जेस को पुट कर रहे हो, उसी फैक्टर से फोर्स रिड्यूस हो जाएगी. कौन सी वाली फोर्स? जो वैक्यूम में थी फोर्स चार्जेस के बीच की. सो Fm इज इक्वल्स टू F नॉट अपॉन 4. ठीक है ना? अगर हम वाटर में डालें चार्जेस को, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? If we put the charges in water, what is the dielectric constant for water? 80 भी होता है, किसी किसी बुक में 80 है, किसी किसी बुक में 81 है. तो फोर्स कितनी हो जाएगी? If we talk about the force in water, ठीक है, force in water, तो F नॉट अपॉन 81.
ठीक है, मेटल्स के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इट्स इनफाइनाइट, ठीक है, फॉर मेटल्स the value of k, the value of k is infinite, ठीक है. Second, in terms of force we can define dielectric constant as F naught upon Fm. In terms of permittivity, how we can define, so k is equals to permittivity of the medium to the permittivity of free space. We can also call this as relative permittivity. Understood? पहला फोर्स की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा आप परमिटिविटी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. Everyone look here. There are many things which can be studied in this lecture or here, but you are not concentrating. ठीक है. So this is how we can define in terms of permittivity. It is reciprocal ना बेटे, यहाँ पे force of the medium है free space to the medium, यहाँ पे medium to the free space. क्योंकि F क्या होता है, F has a inverse relation with the permittivity, है ना. What is the formula? F is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over the distance square. So it is an inverse relation of force with the permittivity. That's why यहाँ पे the permittivity of the medium, then permittivity of free space. ठीक है. Third, we can define in terms of electric field. So K is equals to E naught upon EM. Electric field of the free space to the electric field of the medium. Fourth, we can define dielectric constant in terms of capacitance. C is equals to, K is equals to, what is the formula for the capacitance of parallel plate capacitor? C is equals to, it's epsilon naught A over D. That means C has a direct relation with the permittivity. So permittivity में पहले medium है, तो capacitance में भी क्या होगा यहाँ पे, capacitance of the medium to the capacitance of the free space. ठीक है. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, if we have to define Cm, it goes there, तो C naught K या K C naught. ठीक है. इसको कैसे कर सकते हो, Em is equals to E naught over K. इसको कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन m is equals to K एप्सिलॉन नॉट. तो जहां पे K मल्टीप्लाई में है, डाई में इंट्रोड्यूस करने के बाद या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस को पुट करने के बाद, अगर वो इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगी. अगर वो चीज डिवाइड में है तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है इट डिक्रीजेस. यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पुट करने के बाद जो फोर्स है इट रिड्यूसेस बाय द फैक्टर K. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर आप मीडियम में पुट करें तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, सो दिस क्वांटिटी डिक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस. So capacitance increases when you introduce the dielectric slab between a parallel plate capacitor. Understood? So this is how we can define the dielectric constant in 4 terms. Understood? Next we have types of dielectrics. So we have 2 types of dielectrics, polar dielectrics and non-polar dielectrics. What are the polar dielectrics or the polar molecule? A molecule in which the center of mass of positive charges do not yet does not coincide with the center of the mass of the negative charges. They are asymmetric. इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में कंसाइड नहीं करते. ठीक है. They are asymmetric. These dielectrics made up of polar molecules are called polar dielectrics. They have asymmetric shapes. यानी कि इनकी शेप सिमेट्रिक नहीं होती. They have net dipole moment. कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्रिक नहीं होते. What are the examples? HCl, NH3, CO and CH3. So their positive and negative charges are not coincide. These are polar dielectrics या polar molecules. What are non-polar dielectrics and non-polar molecules?
in which the center of mass of the positive charge coincides with the center of the mass of the negative charge. इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंसाइड करते हैं. दे आर सिमेट्रिक इन शेप, सिमेट्रिक मिलेंगे. सो दीज आर नॉन पोलर, क्योंकि कंसाइड करते हैं, एक जैसे होते हैं. सो दे हैव नेट या जीरो, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है. इट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव का उतना नेगेटिव का होगा. सो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है इनका, जीरो. एग्जांपल्स H2, N2, O2, जितनी भी मोस्ट ऑफ गैसेस हैं, CO2, CH4. so these are non polar. What is polarization? The phenomena of aligning the molecules in a particular direction after applying the electric field is known as polarization. For example, if we have a sample, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. These are molecules. It is negative, here it is positive, ठीक है. It is positive, negative, negative, positive. In this sample, the molecules are not aligned in a particular direction, है ना. किसी का नेगेटिव उधर है, किसी का पॉजिटिव उधर है, किसी का पॉजिटिव इधर है, किसी का नेगेटिव उधर है ना. रैंडम अलाइनमेंट है ना. बट एज वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस, ये एक सैंपल है, वो कुछ भी हो सकता है, वो H2 हो सकता है, कोई और गैस हो सकती है, कोई कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, HCl हो सकता है. तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, डाइपोल है, बट डाइपोल इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज इक्वल्स टू जीरो. कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, सो दे आर नॉट इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट. बट एज वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एज वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस सैंपल, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो. देन हाउ द डाइपोल्स अलाइन themselves? They align themselves in a particular direction, ठीक है. They align themselves in a particular direction. सबके जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड है, सबका पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरी साइड है. अंडरस्टूड? So this is known as polarization. So how you define the polarization? The process या the phenomena of align the dielectric molecules या the molecules in a particular direction under external electric field is known as polarization, ठीक है. So understood? जैसे ही external electric field apply हुआ, the molecules, the dipoles align themselves in a particular direction. So this phenomena is known as polarization. एक होता है polarization of light, that is a different phenomena, ठीक है. यहाँ पे polarization of dielectrics है. So what is the relation between susceptibility and the dielectric constant या dielectric? So K is equals to 1 plus chi E, ठीक है. और दूसरा रिलेशन क्या है susceptibility का, electrical, this is electrical susceptibility. Chi E is equals to dipole moment P upon epsilon naught E. Epsilon naught is the electrical permittivity of free space, and what is E? It is electric field, or we can say electric field intensity. Next we have capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab introduced in it. We have two conducting plates, ठीक है, charge conducting plates. One is positively charged, another one is negatively charged. पहले क्या होगा, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ देते हैं इस प्लेट पे, the plates having A
क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दे आर डी डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस है। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की, चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि पोलराइजेशन की वजह से, द नेगेटिव चार्ज ओवर दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन का पता है ना आपको, अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज वहां पे इंड्यूस होता है। दिस इज हाउ वी कैन से द पोलराइजेशन, हम पोलराइजेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑन द लोअर साइड, अपोजिट पोलैरिटी पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, इन दिस देयर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो वी इंट्रोड्यूस दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ T thickness, right? So the capacitance of a parallel plate capacitor we know C is equals to epsilon naught A over D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. C naught से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। So electric field is E naught. External electric field यहाँ पे क्या है? E naught है in this case and here. But here polarized electric field. ठीक है? Here we have polarized electric field. That means अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बट डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा? दे डू नॉट कंडक्ट द चार्ज, सेम चार्ज कंडक्ट नहीं करते। तो चार्ज क्या होता है वहां पे? अंदर भी इंट्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। दैट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव। दे हैव डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, दे आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक और सेटअप हो गया यहाँ पे, जिसको हम क्या कहेंगे? EP. If we have to find the net electric field, E is equals to E naught minus EP. ठीक है, this is the net electric field. So capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A over D. Then we have to find the capacitance of this parallel plate capacitor after introducing the dielectric slab. How we can find it? What is potential gradient beta? What is potential gradient? E is equals to potential difference per unit distance, right? So firstly we can find the value of V. So V is equals to जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनटू द डिस्टेंस। ठीक है, हियर वी हैव, एक तो हमें यहाँ का सेपरेट निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया का और इस एरिया का, प्लस दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इट्स E naught एंड डिस्टेंस होगा बेटे D minus T. अंडरस्टूड? ठीक है, सो V is equals to E naught, its distance is D minus T. क्योंकि हमें सिर्फ इस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़कर जो एरिया बचा है वो कितना है? इट्स डिस्टेंस कितना है? D minus T. और स्लैब का कितना है? EP या E कह लो, एंड डिस्टेंस इज T thickness. So plus E या EP into T thickness. E naught D minus T. What we can write over here? क्या लिख सकते हो? अभी हमने बात की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? व्हाट इज द वैल्यू? K is equals to E naught over EM, राइट बेटा? इट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? EM is equals to E naught over K. तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E naught upon K. Can we put the value of this E as E naught upon K? Right ना बेटा? So plus E naught upon K, it's T. We can remove E naught as common. ठीक है, E naught को यहाँ से कॉमन ले सकते हो. What we have? It's D minus T plus T upon K. ठीक है, this we have. This is V. We can put E naught
ई नॉट को क्या लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स कितना होता है, इट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी Q ओवर E। ठीक है, तो ई नॉट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इट्स Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, so put this value of V in C is equals to Q by V, capacitance of a parallel plate capacitor, you have to write all the things। ठीक है, साथ साथ ये भी लिखना है, this is a potential over the electric plates, these are the things, this is the electric field on the conducting plates, on the surface of the conducting plates, then what is sigma, sigma is a surface charge density, that is equals to Q by A। So we put the value of this V in the capacitance, C is equals to Q by V। When we put the value, what we have, C is equals to Q over this value Q A epsilon naught, it comes down D minus T plus T upon K। ठीक है, Q will be cancel out with the Q। ठीक है, what we have, C is equals to A epsilon naught D minus T plus T by K। This is the capacitance of a parallel plate capacitor after introducing the dielectric slab। Then we took a special case in which T is equals to D। ठीक है, वैसे तो हमने जो थिकनेस ली थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो लेस देन D थी, जो पूरा डिस्टेंस था प्लेट्स के बीच में उससे कम थिकनेस की ली है। बट व्हाट हैपन अगर हम पूरा का पूरा डिस्टेंस जो प्लेट्स के बीच में है, इफ वी कवर्ड इट विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या होगा, T is equals to D, then capacitance is equals to A epsilon naught। T को हमने क्या पुट कर दिया, इफ वी टुक दिस आउट, हम यहाँ से D माइनस टी को कॉमन भी ले सकते हैं, तो D माइनस टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इट्स 1 ओवर K, है ना बेटे। और अगर हम T को भी इसकी जगह पुट कर देंगे तो D को हमने T के इक्वल पुट कर दिया, तो D माइनस डी, यहाँ से ये जीरो टर्म खत्म हो गई, है ना। If we took this out, T minus D minus T, then we have it's 1 over K left, ठीक है, plus 1 over K, this K goes up, ऊपर जाएगा, and what we have this A epsilon naught over the distance। If T is equals to D, अगर हम T को भी D रख देंगे तो this term 0, what we have C is equals to A epsilon naught over 1 over K, this K goes up, है ना, यहाँ पे हमारा T था ना, we have T, तो हमने यहाँ पे T को D पुट कर दिया, राइट, जो T थिकनेस है that is equals to D, so this K goes up, तो C is equals to A epsilon naught K over D, A epsilon naught over D, this is the capacitance of the parallel plate capacitor, we can write it as C is equals to C naught, the capacitance of the parallel plate capacitor, this is C naught into K। So what does this indicate? कि when we introduce the dielectric slab between the conducting plates या between the capacitors, the capacitance of the parallel plate capacitor increases। जैसे ही हमने dielectric constant introduce किया, the capacitance of a parallel plate capacitor increases, ठीक है, this is how, because it is directly proportional, but they have the direct relation। So after introducing the dielectric slab in between capacitor या parallel plate capacitor, the capacitance increases। Understood?
जितना कैपेसिटेंस पहले था, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। वाई बेटे? वाई इट इंक्रीजेस? क्योंकि देखो यहां पे भी चार्ज है, जैसे ही हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की इसके अंदर भी चार्ज हो गया, तो चार्ज का अमाउंट ज्यादा हुआ ना। दैट मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीजेस व्हेन वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर। अंडरस्टूड? पहले कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, है ना। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और ज्यादा अमाउंट में चार्ज को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एज वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अब यहाँ पे हमारा क्या है? पहले क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, दे होल्ड सम अमाउंट ऑफ चार्ज इन देम, वो ट्रांसमिट नहीं करते आगे। चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है अपोजिट पोलैरिटी का उनके अंदर, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, राइट। हियर वी हैव द कंडक्टिंग स्लैब जो चार्ज को कंडक्ट कर देगी। ठीक है। कैसे कंडक्ट करेगी? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, दिस नेगेटिव चार्ज गेट कंडक्टेड। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अंदर कंडक्ट हो गया। एंड व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द कंडक्टर्स, वी हैव स्टडीड इन द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये हमने गॉस लॉ में भी एप्लीकेशन में भी पढ़ा है और प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है कंडक्टर्स की। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके अंदर। दिस इज हैविंग T थिकनेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, they are D distance apart from each other। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ कहाँ हो रहा है? इस और इस एरिया में हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी जो यहाँ पे और यहाँ है ना। अंडरस्टूड ना बेटे? सो V इज इक्वल्स टू E नॉट, इट्स D माइनस T। हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं ले रहे? जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की अभी, उसमें हमने साथ में इसका भी ऐड किया ना, इसकी भी पोटेंशियल ऐड की है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो E नॉट अगर हम T लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? बिकॉज इनसाइड या इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। सो पुट ऑल द वैल्यूज। E नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट sigma over epsilon naught D minus T. What we can write? Sigma charge per unit area epsilon naught, it's D minus T. Put the value of this potential in the capacitance. C is equals to Q by V. Put the value Q over this Q. A epsilon naught goes up and D minus T over here. Q is cancelled out with the Q. So capacitance is equals to C is equals to A epsilon naught over D minus T. This is the capacitance of a parallel plate capacitor after introducing the conducting slab. फिर दोबारा से that special case कि T is equals to D हो जाए। ठीक है। उतना पूरा का पूरा अगर हम कंडक्टिंग कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ से? If D is equals to T, then capacitance is कितना हो जाएगा? अगर ये टर्म पूरी 0 हो गई तो कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ठीक है। इफ D इज इक्वल्स टू T हो जाए, कंडक्टिंग स्लैब पूरी इंट्रोड्यूस हो जाए विद इन द होल कैपेसिटर, बिटवीन द होल कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। बट हियर ऑल्सो फ्रॉम द D डिस्टेंस, देखो C हैज अ इनवर्स रिलेशन विद द D ना बेटे। C is equals to A epsilon naught D minus T. C has a inverse relation with D. अगर हम D को डिक्रीज करते हैं, then the capacitance of a parallel plate capacitor after introducing the conducting slab, it increases. अगर हमने D की वैल्यू को कम कर दिया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं?
डिस्टेंस को डिक्रीज ही तो कर रहे हैं। डी डिस्टेंस जो था उसमें से टी थिकनेस माइनस हो रही है। पहले डिस्टेंस मान लो 3 mm था, अगर हमने 1 mm की डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, so overall distance is decreases. If the distance is decreases then the capacitance increases. So after introducing the conducting slab in the parallel plate capacitor, its capacitance increases. क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज हो रहा है। इफ द डिस्टेंस डिक्रीजेस देन द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सो दोनों की दोनों स्लैब से द ओवरऑल कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor increases whether you introduce the dielectric slab or introduce the conducting slab. Understood? Next we have uses of capacitors in radio for the tuning. In the resonant circuits जो थे वहां पे कैपेसिटर यूज हो रहा था, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज हो रहे थे, है ना, फॉर द ट्यूनिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या था? एलसी सर्किट्स है ना, दोनों पैरेलल में थे, एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में थे। देन द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट LC. तो इंडक्टर और कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द ट्यूनिंग सर्किट्स, जिसकी वजह से ट्यूनिंग हो रही थी। वी कैन हियर द वॉइस, द सिग्नल इन द रेडियो, है ना। तो वहां पे कैपेसिटर्स यूज होते हैं। इन रेक्टिफायर सर्किट्स में डायोड वगैरह का पूरा होने के बाद में जो हमें डीसी मिलती है, दैट इज नॉट फुल डीसी, देयर आर सम रिपल्स। तो एज अ फिल्टर सर्किट्स हम कैपेसिटर यूज कर रहे थे, क्योंकि राइट। सो वी हैव दिस, द कैपेसिटर इज यूज्ड इन द रेक्टिफायर सर्किट्स टू रिमूव आउट द रिपल्स, टू रिमूव आउट द रिपल्स। ठीक है, जो थोड़ा बहुत एसी रह जाती है ना, उसको रिमूव करने के लिए वी यूज कैपेसिटर इन पैरेलल, किया था ना यूज। नेक्स्ट वी हैव इन टैंक सर्किट्स ऑफ ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करनी होती है, तो भी हम इंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। देन फॉर प्रोड्यूसिंग द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन इंडक्शन मोटर्स से भी कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है, राइट आशीष। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्जेस को क्या इफेक्ट होता है? If the battery is disconnected from the capacitor, your battery is kept connected with the capacitor. In both the cases, various parameters या various physical quantities पे क्या effect होता है आपका dielectric? So which have a direct relation, that means they increases, और जिनमें ratio divide में है they decreases. So first we have charge. तो disconnect करो या connect करो battery, charge remains constant. In this disconnected, the charge remains constant, but when the battery is connected, so charge increases when you introduce the dielectric. This is the effect of the dielectric when battery is connected across capacitor and battery is disconnected from capacitor. Understood? किस चीज का effect है ये कि डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो उस डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट हुआ चार्ज पे, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटेंस या एनर्जी पे। तो चार्ज क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर आप उसको बैटरी को हटा दोगे और बैटरी कनेक्ट रखोगे तो चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस increases, capacitance in both the cases increases, energy here decreases, here increases, potential remains constant when you keep the battery connected across the capacitor. ठीक है, it remains constant. electric field, क्योंकि electric field constant है इसलिए potential भी constant है, but charge increases.
इसमें देखोगे ना बैटरी कनेक्टेड है तो ऑलमोस्ट हैव द डायरेक्ट रिलेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, बाकी तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। बट इस केस में सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, बाकी चीजें डिक्रीजेस। ठीक है, you try to solve this numerical. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. ठीक है, 8 picofarad. Pico is 10 raised to power -12. पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है? अगर चार्जेस कहाँ पे एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच जो कैपेसिटेंस है दैट इज 8 पिकोफेराड. द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड टू हाफ. अब सेपरेशन को कर दिया गया हाफ, यानी कि d/2 कर दिया गया. एंड देन फिल्ड इट विद द डाइलेक्ट्रिक हैविंग द k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 5 और k की वैल्यू कितनी कर दी? 5 कर दी. देन फाइंड द कैपेसिटेंस इन द सेकंड केस. तो पहले इतना दे रखा है, बाद में कैपेसिटेंस क्या हो गया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस बेटे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट a over d. This is a formula. Now d/2 and it is introduced with the k. ठीक है, now put the values. It goes up to 2 epsilon naught a over d and the value of k is 5. देखो epsilon naught a over d, this is a value of epsilon naught a over d. पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट a over d, जिसकी वैल्यू गिवन है 8 पिकोफैराड. डिस्टेंस को हाफ कर दिया d/2, 2 गोज अप इन द न्यूमरेटर और k की वैल्यू होती है 5. अभी किया था ना हमने. c इज इक्वल टू कितना होता है? c नॉट k. ठीक है, इसको लिख लो c नॉट, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को लिख लो. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज गिवन दैट इज 8 पिकोफैराड. तो यहां पे क्या करोगे? 2 into 8 पिकोफैराड into 5. 5 into 2 is 10 and 8 it's 80 picofarad, right? तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है व्हेन यू इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो k की वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा. फोर्स के केस में क्या है? इट रिड्यूसेस जो भी k की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस जो भी k की वैल्यू होगी एंड परमिटिविटी इंक्रीजेस. अंडरस्टूड ना? So we ended today's lecture and also the chapter 2, that is electrical potential and capacitance, also completed here. ये मैं आपको बुलाऊंगी बोलने के लिए.